ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ پچھلے 3 دنوں میں دہشت گردی کے 3 بڑے بڑے واقعات سامنے آئے ہیں۔ 3 گروپس کے بارے میں خلاصہ ہوا ہے اور یہ تینوں گروپ الگ الگ انداز سے دیش کے ساتھ غداری کر رہا تھا۔ یہ تینوں گروپ پاکستان کے لیے کام کر رہا تھا۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے ذریعے ان تینوں گروپس کو کنٹرول کیا جا رہا تھا، لیکن ان تینوں گروپ میں سے جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان میں سے ایک کا نام بھی اردو میں نہیں ہے، اس لیے میڈیا میں ان خبروں کے بارے میں کہیں پر چرچا نہیں، کوئی تذکرہ نہیں، ان کی کمیونٹی کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا ہے، ان کے سماج پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو بلڈوز نہیں کیا جا رہا ہے۔ ایک گروپ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI سے مل کر بھارت میں مختلف گروپوں کو ہتھیار کی سپلائی کر رہا ہے۔ دوسرا گروپ انڈیا کی جو خفیہ جانکاری ہے، جو سیکرٹ انفارمیشن ہے، وہ پاکستان کو پہنچا رہا ہے۔ اور تیسرا گروپ بھارت میں جگہ جگہ قتل و غارت گری کر رہا ہے، لوگوں کا خون بہا رہا ہے، بے گناہوں کو مار رہا ہے، دہشت گردانہ سرگرمیوں کو انجام دے رہا ہے۔ اور یہ تینوں گروپ کا خلاصہ ہوا ہے، لیکن میڈیا میں کہیں پر کوئی تذکرہ نہیں۔ جو سب سے زیادہ شرمناک ہے اور وجہ صرف اتنی ہے کہ ان تینوں گروپ میں فی الحال جن لوگوں کا نام آیا ہے ان ناموں میں ایک نام بھی اردو زبان کا نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو پوری تفصیل بتانے جا رہا ہوں، مکمل ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اور اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ملا ٹائمز کا کام اگر آپ کو پسند آتا ہے تو ہماری سبسکرپشن لے لیجئے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، یا پھر جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ممبرشپ لے لیجئے۔ ملا ٹائمز کا کام الحمدللہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور آپ سب کے سپورٹ کی وجہ سے ملا ٹائمز ایک مضبوط میڈیا ہاؤس بنتا جا رہا ہے۔ اور آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تینوں اہم ترین واقعہ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج کی خبر کے بارے میں۔ آج دلی کرائم برانچ نے ایک انکشاف کیا۔ دلی کرائم برانچ نے باضابطہ میڈیا کے سامنے آ کر بتایا کہ اس نے ایک ایسے گروپ کا پردہ فاش کیا ہے جو گروپ پاکستان سے ہتھیاروں کی سپلائی پنجاب کے ذریعے پورے انڈیا میں کرتا تھا۔ جو ہتھیار اس گروپ کے پاس سے برآمد ہوئے ہیں وہ ترکی کا بنا ہوا ہتھیار ہے، چین کا بنا ہوا ہتھیار ہے، اس کے علاوہ پاکستان کا بنا ہوا ہتھیار ہے۔ اور پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI ڈرون کے ذریعے بھارت کے پنجاب میں ان ہتھیاروں کو بھیجتی تھی اور پھر وہاں سے یہ گروپ ہتھیار کو دیش بھر میں پہنچاتا تھا۔ دیش میں کئی دہشت گردی کے واقعات سامنے آئے، یا کئی جگہ فائرنگ کے جو واقعات سامنے آئے ہیں، یا غنڈہ گردی کے جو واقعات سامنے آئے ہیں، ان واقعات میں جن ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ان ہتھیاروں کی سپلائی اسی گروپ نے کی تھی۔ اور دلی کرائم برانچ کا کہنا ہے کہ اس گروپ کو ISI کا پورا سپورٹ تھا، ISI کے ذریعے ہی اس پورے گروپ کو ہینڈل کیا جا رہا تھا۔ دلی پولیس نے جن 4 ملزموں کو پکڑا ہے اس کے نام آپ جان لیجئے۔ پہلا نام ہے اجے کا، دوسرا نام ہے مندیپ کا، تیسرا نام ہے دلوندر کا اور چوتھا نام ہے روہن کا۔ اجے، مندیپ، دلوندر اور روہن یہ چاروں گرفتار کیے گئے ہیں اور ڈرون کے ذریعے باضابطہ ہتھیار ان تک پہنچائے جاتے تھے۔ اب دلی کرائم برانچ اور ایجنسیاں اس بات کی تفتیش کر رہی ہے کہ ISI کے ساتھ اس گروپ کا لنک کب سے تھا اور کون لوگ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کس طرح ڈرون کو آپریٹ کیا جاتا تھا، پھر ڈرون کے ذریعے ہتھیاروں کو انڈیا پہنچایا جاتا تھا اور پھر پورے دیش میں ہتھیاروں کی سپلائی ہوتی تھی۔ اس گروپ کے پاس سے آج جو کچھ پولیس کو ملا اس میں 10 پستول ملی ہے، اور یہ جو 10 پستول ہے ترکی اور چینی ساختہ ہے۔ اس کے علاوہ 92 کارتوس ان کے پاس سے پکڑے گئے ہیں اور یہ پورا گینگ، پورا گروپ ISI کی نگرانی میں چل رہا تھا۔ ISI کے ذریعے فنڈنگ ہوتی تھی، انڈیا میں مکمل ان کو پروٹیکشن دیا جاتا تھا کہ کیسے اور کہاں پہنچانا ہے۔ ان میں سے 2 ملزم کا تعلق پنجاب سے ہے اور 2 کا تعلق دلی NCR سے ہے۔ اس کے بعد دوسری خبر جان لیجئے، اور اس دوسری خبر کا تعلق بھی اتر پردیش سے اور کرناٹک سے ہے۔ کل یہ خبر سامنے آئی تھی، کٹپی میں کام کرنے والے بحریہ کے 2 لوگ جاسوسی کے الزام میں پکڑے گئے ہیں۔ یہ دونوں کیرلا میں اور کرناٹک میں کام کر رہے تھے، اتر پردیش سے دونوں کا تعلق ہے اور یہ دونوں پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کو بھارتی بحریہ کے بارے میں، نیوی کے بارے میں انفارمیشن دے رہے تھے، جانکاری دے رہے تھے۔ اور جب افسران کو شک ہوا کہ انڈین نیوی کی یہ جو سیکرٹ انفارمیشن ہے کیسے پاکستان تک پہنچ رہی ہے،
पाकिस्तान को इंडियन नेवी की हर नकलो हरकत का इल्म कैसे हो रहा है। जब नज़र रखी गई, जांच की गई, तो पता चला कि दो लोग जो यहाँ काम कर रहे थे वो इन सब के पीछे है। एक का नाम है रोहित और दूसरे का नाम है संतरी। रोहित की एज 29 ईयर्स है और संतरी 37 ईयर का है। ये दोनों काम कर रहे थे, एक कंपनी है सुषमा मेरीन प्राइवेट लिमिटेड, उसमें इंसुलेटर के तौर पर ये दोनों काम कर रहे थे और ये दोनों पहले कोची में थे। लेकिन कुछ दिनों पहले एक का ट्रांसफ़र हो जाता है उडुपी में, दूसरा कोची शिपयार्ड में मौजूद था और ये दोनों नेवी में काम कर रहे थे और वहीं से ये दोनों पूरी की पूरी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे थे पाकिस्तान को। और जो इंडिया की एजेंसी है, जो इंडिया की नेवी है, उनको अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था पाकिस्तान को कैसे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है। जब इंडियन नेवी को अंदाज़ा लगा कि हमारी हर नकलो हरकत पर नज़र है पाकिस्तान की, उसके बाद अपने अमला पर इन लोगों ने नज़र रखा, छानबीन की, लगातार निगरानी की गई। उसके बाद पता चला कि व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए रोहित और संतरी दोनों इंडिया की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को भेज रहा है। उसके बाद इन सबको गिरफ़्तार किया गया। इनके ख़िलाफ़ 152 और दूसरे सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। और कोई आज कल में नहीं बल्कि पिछले 18 महीनों से ये लोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के राब्ते में थे। इनके अकाउंट में ISI ने पैसा ट्रांसफ़र कर रखा है, रुपया भेज कर रखा है। तो रोहित और संतरी चंद पैसों के लिए, दौलत के लिए देश को पाकिस्तान के हाथों बेचने का काम कर रहे थे। तीसरा ग्रुप जो पकड़ा गया है वो है लॉरेंस बिश्नोई का ग्रुप और ये मामला भी 2 दिन पहले सामने आया। पुलिस ने खुलासा किया कि लुधियाना के लादवाल टोल प्लाजा पर पुलिस ने एक ऐसे ग्रुप का पर्दाफाश किया जो ग्रेनेड और हथियार एक दूसरे ग्रुप को सप्लाई कर रहा था। पुलिस का कहना है कि हरियाणा में जो टोल प्लाजा है लादवाल का, वहाँ पर पुलिस को अंदाज़ा था, शक था कि जो लॉरेंस बिश्नोई का ग्रुप है वो एक्टिव है और वो हथियार एक दूसरे को सप्लाई करेगा। उसके बाद दरअसल हुआ ये कि लॉरेंस बिश्नोई का ग्रुप पाकिस्तान से हथियारों को लेकर के इंडिया में अपने एक्टिव और सरगर्म दूसरे ग्रुप को वो हथियार ट्रांसफ़र कर रहा था। और इसके लिए इन लोगों ने एक जगह चूज़ की, हरियाणा के लादवाल टोल प्लाजा के पास। पुलिस को अंदाज़ा लग जाता है कि यहाँ पर ये लोग एक दूसरे को हथियार ट्रांसफ़र कर रहे हैं ताकि दहशतगर्दाना एक्टिविटीज़ में उसका इस्तेमाल किया जा सके। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और जैसे पुलिस वहाँ पर इन सब को गिरफ्तार करने के लिए पहुँचती है, पुलिस पर फ़ौरन गैंग की तरफ से, दहशतगर्दों की तरफ से फायरिंग कर दी जाती है। पुलिस भी जवाबी फायरिंग करती है लेकिन हमलावर इसमें ज़ख्मी हो जाता है। पुलिस कुछ को गिरफ्तार करती है, कुछ फ़रार हो जाता है। इस ग्रुप के 3 लोगों को पहले भी पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा, जिसमें एक का नाम है अर्श जो बिहार से ताल्लुक़ रखने वाला है, दूसरे का नाम है अजय जो हरियाणा का है और तीसरे का नाम है शमशेर जो लुधियाना से ताल्लुक़ रखता है। तो इन तीनों को पहले भी पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा। अब लॉरेंस बिश्नोई का जो ग्रुप है उसको जान लीजिए। आपको पता होगा कि लॉरेंस बिश्नोई का ग्रुप देश में कई सारे दहशतगर्दाना वाक़यात में मुलव्विस रहा है, कई लोगों का इसने कत्ल करवाया है, कई अहम तरीन शख्सियात को लॉरेंस बिश्नोई ने बाज़ाब्ता धमकी दी है। पिछले साल मुंबई के मारूफ सियासतदान बाबा सिद्दीकी का कत्ल हो गया और बाबा सिद्दीकी के कत्ल की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने ली थी। इसने बाज़ाब्ता एतराफ़ किया। उसके बाद इसने पप्पू यादव को भी कत्ल की धमकी दी थी। सलमान खान तक को कत्ल की धमकी दी गई थी लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप की तरफ से और अभी तक पुलिस लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप का खात्मा नहीं कर सकी है, इस गैंग का सफाया नहीं कर सकी। उसके बाद पुलिस की जांच में सब सामने आया कि लॉरेंस बिश्नोई जो दहशतगर्दी कर रहा है, जो गुंडागर्दी कर रहा है, तो इसके पीछे ISI का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान की तरफ से इसको पूरा सपोर्ट किया जाता है, हथियारों की मदद इसको दी जाती है, हर तरह की इसको हेल्प वहाँ से मिलती है और उसी के बलबूते लॉरेंस बिश्नोई का ग्रुप इंडिया में लगातार दहशतगर्दी के वाक़यात को अंजाम देता है। पुलिस ने इसके एक ग्रुप का पर्दा तो फाश किया है लेकिन अभी तक पूरे ग्रुप का पर्दाफाश नहीं हो सका। अब ज़रा समझिए और एक वाक़े को दूसरे वाक़े से मिलाकर देखिए कि किस तरह पिछले 3 दिनों में
इन 3 ग्रुपों का पर्दाफाश हुआ। एक ग्रुप बाज़ाब्ता हथियार को ISI के हाथों रिसीव करता है पाकिस्तान में। दूसरा ग्रुप, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का ग्रुप भी मुलविस है, वो हथियारों को पंजाब से दूसरे इलाकों में दहशतगर्दों तक मुंतकिल करता है। और तीसरा ग्रुप है जो इंडिया की सीक्रेट इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को पहुंचा रहा है। इसके बावजूद मीडिया में इन खबरों का कोई तस्करा नहीं। दूसरी तरफ कहीं पर किसी मुसलमान के बारे में कोई शक होता है, किसी मुसलमान पर इल्ज़ाम लगाया जाता है और फ़ौरन तमाम मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया जाता है। अभी हाल ही में यानी 10 नवंबर को दिल्ली ब्लास्ट का वाक़या सामने आया। कुछ कश्मीरी डॉक्टर्स इस दहशतगर्दाना हमले के इल्ज़ाम में पकड़े गए। NIA उनकी जांच कर रही है, लेकिन इस वाक़े की आड़ में राइट विंग ने, इंडियन मीडिया ने तमाम मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया, तमाम डॉक्टरों को भी दहशतगर्द करार दिया। हद तो ये हो गई कि पुलिस भी यही सोचने लगी। और कल की बात है जब हाई कोर्ट में उमर खालिद और दूसरे जो मजलूम है, जो पिछले 5 सालों से जेलों में बंद है, जिनमें शर्जील इमाम है, उमर खालिद है, मीरान हैदर, इन सब की जब पेशी हुई और इनकी ज़मानत की अर्ज़ी पर कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो दिल्ली पुलिस ने ज़मानत की मुखालफत की। और मुखालफत की दलील देते हुए पुलिस का कहना था, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो जाहिलों से ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। पढ़े लिखे लोग अगर रेडिकलाइज हो जाते हैं, दहशतगर्द हो जाते हैं, तो आम लोगों से ज़्यादा वो डेंजरस होते हैं। इसलिए उमर खालिद, शर्जील इमाम और इन लोगों को ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए। और सीधे सीधे पुलिस ने, इन लोगों ने कहीं ना कहीं दिल्ली ब्लास्ट से लिंक जोड़ दिया, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगा है दहशतगर्दाना हमले का, वो सारे तालीम याफ्ता अफराद हैं, पढ़े लिखे हैं, वो डॉक्टर हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कोई असिस्टेंट प्रोफेसर था, कोई डॉक्टर था, कोई मेडिकल की ड्यूटी अंजाम दे रहा था, खा वो डॉक्टर उमर जिसने सुसाइड अटैक किया, या मुजम्मिल, या शकील, या दूसरे। अब इन सब पर दिल्ली ब्लास्ट का इल्ज़ाम लगा, NIA जांच कर रही है। अब इसकी आड़ में दिल्ली दंगा के आरोप में जो लोग जेलों में बंद हैं, उन सब के बारे में भी दिल्ली पुलिस ने यही कह दिया कि लोग भी पढ़े लिखे हैं। और अभी ताज़ा वाक़या मौजूद है कि दिल्ली ब्लास्ट को जिन लोगों ने अंजाम दिया वो तालीम याफ्ता थे, इसलिए सब भी पढ़े लिखे लोग हैं। इनको ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए, इनको जेल से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ये जेल से बाहर निकल गए तो ख़तरनाक साबित होंगे, डेंजरस साबित होंगे। पसे पर्दा शायद ये कहा जा रहा हो कि लोग भी कोई इस तरह का वाक़या अंजाम दे सकते हैं, इसलिए इनको ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए। अब ये सोच है, लेकिन देखिए कितना फ़र्क है। मुसलमान अगर एक हमले में पकड़े गए तो पूरे मुसलमान बदनाम हो गए, तमाम तालीम याफ्ता मुसलमानों को बदनाम किया जाने लगा और मीडिया में लगातार इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। लाल किला की बहुत सारी वीडियो देखी गई कि लाल किला में या चांदनी चौक पर उस वक्त जो मुसलमान मार्केट करते हुए नज़र आ रहे थे, बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे यूट्यूबर्स वहां पहुंचते हैं और मुसलमान महिलाओं के मुंह में ये लोग माइक लगाते हैं, मुसलमान मर्दों के मुंह में माइक लगाते हैं और पूछा जाता है इस दहशतगर्दी के वाक़े में मुसलमान मुलविस था, तो हर दहशतगर्दी के वाक़े के पीछे मुसलमान ही क्यों होता है, हर दहशतगर्द मुसलमान ही क्यों होता है, इस तरह का सवाल किया जा रहा है बुर्का वाली महिलाओं से, टोपी पहने हुए मुसलमानों से। और इसके पीछे का मकसद है ज़हनी तौर पर, दिमागी तौर पर मुसलमानों को परेशान करना, उनको एक तरह से टॉर्चर करना। जबकि दहशतगर्दी के बेशुमार वाक़यात है, वहाँ मुसलमान नहीं मुजरिम थे बल्कि नन मुस्लिम मुजरिम थे। ये ताज़ा 3 वाक़या देख लीजिए। और हमेशा कहा जाता है कि आज़ाद भारत का जो पहला दहशतगर्द था वो कोई मुसलमान नहीं बल्कि नाथूराम गोडसे था, जिसने महात्मा गांधी का कत्ल किया था। लेकिन ये नैरेटिव हर वाक़े के बाद चला दिया जाता है कि हर दहशतगर्द मुसलमान ही होता है। तब ये तमाम लोग जो ISI के साथ मिले हुए हैं, जो पैसा लेकर वहाँ से हथियार ले रहे हैं, फिर पूरे इंडिया में पहुँचा रहे हैं, कत्ल के वाक़यात को अंजाम दे रहे हैं, तमाम लोग जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को पहुंचा रहे हैं, क्या इनको दहशतगर्द नहीं कहा जाएगा? क्या इनको आतंकवादी नहीं कहा जाएगा? मीडिया का लबो लहजा हमेशा बदल जाता है। जब ISI के कांटेक्ट में कोई मुसलमान पकड़ा जाता है, जासूसी करते हुए कोई मुसलमान गिरफ्तार होता है, तो उसको दहशतगर्द कहा जाता है, पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। और जब अजय पकड़ा जाता है या रोहन पकड़ा जाता है या अभी मंदलीप पकड़ा गया है, तो इन सब की जब खबरें सामने आती है तो पुलिस कहती है कि
یہ لوگ ISI کے ساتھ ملے ہوئے تھے، غداری کر رہے تھے، ہنی ٹریپ کا شکار ہو گئے تھے، پھر ان کے خاندان پر کوئی سوال نہیں اٹھتا، ان کی کمیونٹی پر کوئی سوال نہیں اٹھتا، ان کے خلاف UAPA کا مقدمہ تک بھی درج نہیں ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ممبرشپ لے لیجئے اور ملت ٹائمز کی سبسکرپشن بھی لے لیجئے، ہمیں سبسکرائب کیجئے، پھر ملاقات ہوگی۔